ان کی بہنوں کے ساتھ کبھی ملاقات ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اور ان کو جو ہے کہ تنہائی میں ڈالا گیا ہے اور وہاں پر مسلسل رکھا گیا ہے جہاں پر دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے۔ میرا لیڈر، میرا قائد پاکستان کا سب سے مقبول ترین اور قبول ترین لیڈر ہے۔ وہ پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم ہے جس کو لندن پلان کے تحت بیرونی سازش سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے اس کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا 9 اپریل 2022 کو، اور 9 اپریل 2022 سے لے کر آج تک پورے پاکستان میں جمہوری حکومت نہیں آئی، بلکہ عوام کی مینڈیٹ پر بدترین ڈاکہ ڈالا گیا تھا اور ڈاکہ ڈالا جا بھی رہا ہے۔ اسی سے جو ہے حکومتیں قائم ہو رہی ہیں۔ تو ہماری یہ جنگ صرف ذات کی نہیں ہے، اپنی پارٹی کی نہیں ہے، یہ آپ سب کی جنگ ہے، کیونکہ جس طرح ہمارے صحافیوں کے ساتھ رویہ رکھا گیا، شہید ارشد شریف اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، صابر شاکر صاحب، معید پیرزادہ صاحب، ایاز میر صاحب اور بہت سے صحافی، میں نام لیتے لیتے تھک جاؤں گا، لیکن ہمارے صحافی برادری کے نام ختم نہیں ہوگے جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ یہ وہی صحافی ہیں کہ جب ہماری حکومت میں ہم غلط کام کرتے تھے تو ہمیں بھی تنقید کا نشانہ بنا دیا، لیکن وہ حق اور سچ کے ساتھ کرے تھے۔ تو اس میں آپ سب نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ میں ابھی بھی اوپر اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ یہاں پر بہرحال آج میں آیا ہوں تو کچھ اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن ویسے یہاں بھی جو فسطائیت، جبر اور ظلم شروع تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو صحافی برادری ہیں، یہ لازم اور ملزوم ہے، ہمارا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ تو ہم نے انشاءاللہ تعالی آپ کا ساتھ دینا ہے، آپ کے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور آپ نے جو ہے ہمارے لیے کھڑا ہونا ہے، ہمارے لیے آواز اٹھانی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے ہم حقیقی جمہوریت اس ملک میں لا سکتے ہیں۔ شکریہ جی۔ ایک منٹ باب بھائی مائک دے رہے ہیں، ایک منٹ بیٹھ جائیں، ایک منٹ مائک دے رہے ہیں، رہتی ہے تو آگے دیکھیں گے، اور الحمدللہ ابھی تک جو ہے ہم مطمئن ہیں۔ مجید عباسی صاحب، سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا حقیقت نہیں کہ خیبر پختونخوا میں ترقی کے دعوے صرف تقاریر تک محدود ہیں، جبکہ عوام بھی عدم تحفظ اور غربت کا شکار ہے؟ میرا دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے لیے یہ مناسب ہے کہ دوسرے صوبے میں سیاسی بیانیہ؟ اچھا، کدھر ہو بھائی جان؟ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اچھا اچھا سمجھ۔ سب سے پہلے تو خیبر پختونخوا کی عوام پاکستان تحریک انصاف سے مطمئن ہے، اس لیے پورے پاکستان میں واحد خیبر پختونخوا کی حکومت ہے جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے۔ باقی پورے پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں اور ریجنز ہیں اور وفاقی حکومت ہے، وہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ 17 سیٹوں کے ساتھ حکومت میں بیٹھی ہیں۔ تو عوام مطمئن ہے، عوام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پر اعتماد کرتی ہے، اس لیے جو ہے وہ تیسری دفعہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دے رہی ہے۔ ورنہ خیبر پختونخوا کی عوام کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے دوسرا موقع کسی کو نہیں دیا، اور الحمدللہ آج ہمارا تیسرا موقع ہے۔ دوسری بات کہ میں یہ کون سے آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ دوسرے صوبے میں سیاست نہیں کر سکتا؟ آپ مجھے وہ شک لا کر دیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ سہیل صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میٹ دا پریس میں آپ آئے ہیں کراچی پریس کلب میں، لیکن آپ کے جماعت کی اور ملک پولیس اسٹیبلشمنٹ کی جو تعلقات ہیں وہ دوریاں میں ہو رہی ہے۔ جس وقت آپ یہاں بات کر رہے ہیں، آپ کے علاقے ہیرا سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں اور وہاں پر آپریشن شروع ہو چکے ہیں۔ ایک طرف تو ان کے ساتھ جو لوگ اختلاف ہے کہ آپریشن زبردست ہو رہے ہیں، آپ اس کی اجازت نہیں دے رہے، ہر جگہ اس کا اظہار بھی کر چکے، لیکن آپ کے نمائندے بھی ان لوگوں کے ساتھ آ گئی ہیں جو کرفیو میں وہاں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور دیگر علاقوں میں بھی یہ آپریشن جو ہے مزید توسیع دی جا رہی ہے۔
तारुफ भी करा दिया अपना। नियाज़ अली मेरा नाम है और JNN टीवी से ताल्लुक है। अच्छा GNN से। अच्छा जिस तरह मेरा नाम चांद नवाब है, ARY से ताल्लुक है। ये बताइए आप सिंध का दौरा कर रहे हैं और क्या पीपल्स पार्टी से आपका अंजुमन थाना कोई राब्ता हुआ है? इससे अपनी जो कैंपेन में इतनी आज़ादाना चला रहे हैं, कोई राब्ता या सिंध में कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है पीपल्स पार्टी का, जो राब्ता की आज एक कड़ी है? अच्छा जो ऑपरेशन के हवाले से मेरा मौक़िफ़ था वो मैं बार बार दे चुका हूँ। जो हमने अमन जिरगा किया था सूबाई असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें हमने तमाम सियासी और मजहबी जमातों को और हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को वहाँ मदऊ किया था, और तमाम सियासी जमातें और मजहबी जमातें और हर मकतबा फ़िक्र के लोग वो 15 नुकाती एजेंडा पर जो हैं वो मुतफ़िक हो चुके थे और उनके साइन मौजूद हैं अभी भी। उसमें एक ये भी था कि मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो किसी मसले का हल नहीं है, और ये हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब का पहले दिन से यही मौक़िफ़ रहा है, और इसमें जो है अब तमाम सियासी और मजहबी जमातें भी इस मौक़िफ़ पर हमारा साथ दे रही हैं। तो उसके बावजूद अगर मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो फिर जो है ये कुली बदमाशी होती है, ये जो है आपको फिर मशवरों में शामिल नहीं करते। अच्छा उसका भी देता हूँ। वैसे आज आपके सामने कोई नहीं आया, और ना पहले जो है आप सवाल पूरा नहीं कर पाते थे। अच्छा बिल्कुल मेरे साथ रब्ता हुआ था वज़ीर आला सिंध का, और उन्होंने हर किस्म की सपोर्ट की एक इम्तिहानी भी कराई थी और दावत भी दी थी। मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया था, और साथ में ये भी कहा था कि इंशाल्लाह मैं खैबर पख्तूनख्वा की जो हमारी यहाँ कम्युनिटी है उनसे मिलूँगा, और उनके जो मसले मसाइल होंगे तो इंशाल्लाह वो मैं फिर आपके सामने रखूँगा। मेरा नाम कामरान रजी है, जियो न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है। आप ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि हुकूमत चाहती है कि PTI से डायलॉग करे, तो बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दी खैबर पख्तूनख्वा क्या आप इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? आपसे कोई राब्ता किया गया? जैसा कि आपसे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उनके बारे में ये कहा जाता था कि उनके जो बैकडोर उनके राब्ते हैं वो बहाल हैं, और वो कई मौके पर ऐसा देखने में भी आया। तो आप क्या आपसे कोई ऐसा राब्ता किया गया, और PTI का क्या मौक़िफ़ है जो हुकूमत जिस तरह कह रही है कि PTI को चाहिए कि वो डायलॉग करे? अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि डायलॉग्स होने चाहिए, लेकिन डायलॉग्स में आप देखते हैं कि सामने वाला बाइख्तियार कितना है, और डायलॉग्स जो हैं हमेशा वो लेवल प्लेइंग फील्ड पर होते हैं, ऐसे नहीं होते। वो हमारे पश्तो में एक मतल है कि बंदी को अगर आप जो है घर में रखें और फिर आप कहें कि आए बातचीत करते हैं या डायलॉग्स करते हैं, तो इस तरह नहीं होता। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलता आ रहा है और चल रहा है, और जिस तरह जो है कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की के काफ़िले के साथ पंजाब में हुआ, उनके गाड़ियों की शीशे तोड़े गए, महमूद चकज़ई साहब के बेटे पर हाथ डाला गया, अलामा राजा नासर साहब के साहबजादे पर हाथ डाला गया। तो इसमें अगर आपको कोई दावत देता है डायलॉग्स की, तो फिर उनकी नीयत का पता चलता है कि उनकी नीयत क्या है। दूसरा ये है कि मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है। मुझे मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करूं, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूं, और इस तैयारी को हम पीक पर लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुज़ाकरात और मुज़ाहमत का मैंडेट जो है उन्होंने राजा नासर साहब और महमूद चकज़ई साहब को दिया है, तो वो जिस तरह फैसला करेंगे इंशाअल्लाह ताला हम उस पर मनोन अमल करेंगे। फ़िलहाल तो 8 फरवरी की तैयारी हो रही है। सवाल सबके ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा था। मेरा नाम लियाकत अली राना है, समा न्यूज़ में सीनियर रिपोर्टर हूँ। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी कि आपने उर्दू के हवाले से वहाँ यूनिवर्सिटीज़ को जो ऑर्डर जारी किया या हदायत जारी की, वो एक अच्छा इक़दाम है, लिखी तौर पर काम नहीं करते हैं।
आपसे दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने जब से सीएम का ओहदा संभाला है अब तक आवाम के लिए कौन से भलाई काम किए हैं, और दूसरा एक और जो आप बार बार कहते हैं कि जो ऑपरेशन हो रहा है वहाँ उसकी हम इजाजत नहीं देंगे, आपसे इजाजत कौन मांग रहा है ये भी बता दीजिएगा प्लीज। अच्छा, हमारा झगड़ा यही है कि कोई इजाज़त नहीं मांगता। हम तो इसलिए चाह रहे हैं कि जो हकीकी आज़ादी की ये जदोजहद है इसमें जमहूरियत इतनी मजबूत हो कि यहाँ पर फिर कोई भी इदारा जो है वो मफलूज ना हो सके, और हर बंदा जो है अपने दायरा कार में जो आइन और कानून के दायरे में उनको जो उनके डोमेन जो तय हैं उसमें काम कर सके। तो वही जदोजहद अभी जारी है। और आपने दूसरा कौन सा अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में मेरे 2 महीने हो चुके हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि सूबा सिंध जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सूबा सिंध के पानी के मामले पर उनका साथ दिया था, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे कबायली अजला 2018 में खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज हुए थे एडमिनिस्ट्रेटिवली, इंतज़ामी तौर पर, लेकिन फाइनेंशियली तौर पर उनको अभी तक मर्ज नहीं किया गया। NFC में जो हमारा शेयर बनता है 60 लाख की आबादी की तनासुब से, वहाँ की गुर्बत की तनासुब से, वहाँ के जो इन्वर्स डेंसिटी पॉपुलेशन है उसके हवाले से जो तमाम NFC के इंडिकेटर्स हैं, तो उसमें हमारा बहुत बड़ा हिस्सा भी बनता है जो हमें नहीं दिया जा रहा। तो सूबा सिंध की हुकूमत ने यकीन दहानी तो कराई है कि हम आपका साथ देंगे, बहरहाल आगे देखेंगे, उसकी मीटिंग्स शुरू हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा का वफाक पर जो है 4758 अरब रुपए बकाया है और वो हमें वफाक नहीं दे रहा। वहाँ पर एहसास प्रोग्राम के तहत पनाहगाहें भी चल रही हैं, वहाँ पर कोई भूखा ना सोए वो भी चल रहा है, यतीम बेसहारा बच्चों के लिए ज़मून कोर भी चल रहा है। वहाँ पर सेहत के निज़ाम में यूनिवर्सल हेल्थ केयर है जिसका शनाख्ती कार्ड जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का है, उसको 20 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, और ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ही हो रहा है। तो वहाँ पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा बकाया है जो बाकी सूबों को मिल रहा है, और उसमें जो है हमने परसों सुना कि तकरीबन 100 अरब रुपए की करप्शन हुई है पंजाब में। वहाँ पर तो करप्शन हो रही है, और वफाक में जो IMF ने चार्जशीट उन पर दायर की है कि 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है, और ये सिर्फ रिपोर्टेड हैं, हालांकि इस तरह है नहीं, तकरीबन 10,000 अरब रुपए से ज़्यादा वो का चुके हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का जो जायज़ हिस्सा है, जो जायज़ हक है, वो नहीं दिया जा रहा। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि कराची प्रेस क्लब आज मेरे साथ एक ज़ुबान होकर आवाज़ उठाएं और हमें हमारा हक वफाक से मांगे, तो इंशाअल्लाह ताला फिर शुक्रिया अदा करने भी यहाँ पर ज़रूर आऊँगा, और उससे जो है हम मज़ीद फलाई काम भी कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए डैम भी बना सकते हैं। पाकिस्तान के लिए खैबर पख्तूनख्वा सबसे सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर रहा है जिसका फ़ायदा पूरे पाकिस्तान को हो रहा है। तो हमारे डैम्स ऑलरेडी चल रहे हैं, और हम जो हैं जितना हमारा फॉरेस्ट का एरिया है, तो हम जितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज़्यादा जज़ब कर रहे हैं अपने फॉरेस्ट से। हम बाकी सूबों का कार्बन भी जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी जज़ब कर रहे हैं, तो हम इससे अपने फॉरेस्ट को मज़ीद भी बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे लिए आप भी आवाज़ उठाएं और हम भी आवाज़ उठा रहे हैं।